السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آسان اصول فقہ کے اسباق میں چل رہے ہیں، مختلف ادلہ ہم دیکھ رہے تھے۔ اس میں سے ہم نے پچھلے سبق میں استحسان کو شروع کیا تھا۔ استحسان کے بارے میں ہم نے جانا تھا کہ جو ہے کہ کسی قوی تر دلیل کی بنیاد پر قیاس کو چھوڑ دینا۔ پھر اس میں ہم نے استحسان بالنص، استحسان بالاجماع اور استحسان بالعرف، یہ تین تقسیم ہم نے پچھلی کلاس میں دیکھی تھی۔ ہم آگے بڑھتے ہیں اور آج دیکھیں گے استحسان بالضرورہ، ضرورت کی وجہ سے قیاس کو چھوڑ دینا۔ اب یہ بات واضح ہونی چاہیے، بار بار بتانے کی نوبت نہیں آنی چاہیے کہ ضرورت بولے تو جو ہے میں اور آپ کو جو ہے کوئی ضرورت آ گئی، ہم نے جو ہے کسی چیز کو چھوڑ دیا اور ہم نے کہا کہ ہم نے استحساناً عمل کیا، تو یہ بات درست نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، جو مجتہد ہوں گے، جو اہل حل وقت ہوں گے، وہ لوگ اس کی جو ہے نشاندہی کریں گے۔ تو مصنف فرما رہے ہیں کہ قیاس پر عمل کرنے میں ہر جو تنگی پیدا ہوتی ہو تو یہاں بھی قیاس چھوڑ دیا جائے گا۔ اب ہر جو تنگی ہر انسان کی بدلتے رہتی ہے، تو شریعت کے حساب سے ہم اس کو دیکھیں گے، ٹھیک ہے نا؟ نہیں بھائی مجھے فجر کی نماز پڑھنے میں جو ہے ہر جو تنگی ہو رہی ہے، ٹھیک ہے میں بعد میں پڑھ لیتا ہوں، ٹھیک ہے، ایسے جو ہے چیزیں استحسان میں نہیں آئیں گی۔ تو اس کو ہم شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے کریں گے، نہ کہ شریعت کے دائرے سے باہر نکلتے ہوئے۔ تو اس کو استحسان بن ضرورہ کہتے ہیں۔ اب دیکھیں مثال سے آپ کو واضح ہو جائے گا۔ قیاس کا تقاضا ہے کہ کنواں اس وقت تک پاک نہ ہو جب تک ناپاک پانی اس سے نکالنے کے بعد کنویں کی دیواریں دھو نہ لی جائیں۔ دیکھیں مثلا جو ہے آپ لوگوں نے الفقہ المیسر میں مسئلہ پڑھا ہوگا کہ کوئی جو ہے ناپاک چیز جو ہے کنویں میں گر جائے یا گر کر مر جائے، تو کنویں کی پاکی کیا ہے کہ اس میں سے جو ہے پانی کو نکال دینا۔ اور بھی دوسری صورتیں ہیں، چوہا وغیرہ گرنے کی صورت میں، یعنی مطلب کہ کنواں پاک کب ہوگا، اس میں سے پانی نکال دیا جائے، ٹھیک ہے۔ اب عقل کیا کہہ رہی ہے کہ بھئی پانی تو نکال لیے، لیکن وہ پانی میں ناپاک چیز تھی، اس پانی کی ناپاکی کی وجہ سے دیواریں بھی ناپاک ہو گئی ہیں۔ تو اگر آپ کے گھر میں جو ہے بیارل ہو، بیارل میں کوئی چیز ناپاک گر جائے یا جو ہے بہت دن ہو جائے، تو آپ کیا کرتے ہیں، پانی پھینکتے ہیں اور جو ہے اس کی دیواروں کو بھی صاف کرتے ہیں، ٹھیک ہے، 2-3 مرتبہ کھنگال کر جو ہے اس میں پانی بھرتے ہیں۔ تو کنویں کے سلسلے میں بھی ہماری عقل یہی کہہ رہی ہے کہ اگر اس میں کوئی ناپاک چیز گر جائے تو جو ہے قیاس کیا کہتا ہے کہ اس کا پانی بھی نکالا جائے، اس کی دیواروں کو بھی دھو دیا جائے، اس کا پانی بھی نکالا جائے، اس کی دیواروں کو بھی دھو دیا جائے۔ اب یہاں مسئلہ وہ نہیں ہے، کنویں میں سے پانی کا نکالنا یہ ایک بڑا ٹاسک ہے، اس کے بعد اس کی دیواروں کو دھونا اور بڑا مسئلہ ہوگا۔ تو مصنف فرماتے ہیں کہ عقل کیا کہتی ہے، قیاس کیا کہتا ہے، جب تک ناپاک پانی سے کہاں ہے قیاس کا تقاضا ہے کہ کنواں اس وقت تک پاک نہ ہو جب تک ناپاک پانی اس سے نہ نکالنے کے بعد کنویں کی دیواریں نہ دھو دی جائیں۔ مگر اس میں کیا ہے، شدید حرج تھا، اس لیے پانی کے نکال دینے کو کنویں کی دیوار کی پاکی کے لیے کافی قرار دیا گیا۔ اب اتنا پانی ہوگا کنویں میں، تو پہلے تو پانی بہت ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس لیے اس کو کافی قرار دیا گیا۔ کیوں؟ استحساناً۔ دلیل کیا ہوگی، کس استحسان کی وجہ سے، ضرورت کی وجہ سے۔ یہ اس سے تھوڑی بہت بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اب دوسرا ایگزامپل مصنف دے رہے ہیں کہ مثلا کسی کے شوہر کا انتقال ہو جائے، تو انتقال ہونے پر شریعت کیا کہتی ہے کہ بیوی جو ہے 4 مہینے 10 دن تک عدت گزارے گی، ٹھیک ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ شوہر کا انتقال ہو گیا، لیکن گھر میں جو ہے شوہر نے کچھ بھی نان و نفقہ نہیں چھوڑا، اور نہ کوئی ایسے لوگ ہیں، ذمہ دار ہیں، سرپرست ہیں جو بیوی کے نان و نفقے کا یا اس ودھوا کے نان و نفقے کا جو ہے انتظام کریں، اور بیچاری مجبور ہے۔ تو اب یہاں ایک مسئلہ ہے کہ 4 مہینے 10 دن اس کو قیام کرنا ہے، گھر میں رہنا ہے، شوق منانا ہے۔ اب وہ شوق مناتے ہوئے گھر میں رہے گی تو یہ کھانے کے لالے رہیں گے، تو یہاں پر جو ہے استحساناً اس کو اجازت دی جائے گی کہ وہ اپنے بچوں کے پیٹ بھرنے کے لیے کچھ کما سکتی تو کما لے، یہی وہی بات بتا رہے۔ اسی طرح عدت کی حالت میں عورت کے لیے گھر سے باہر نکلنا جائز نہیں، لیکن اگر شوہر نے عدت کا نفقہ نہیں چھوڑا یا نہ دیا ہو اور عورت کے لیے نفقے کی کوئی اور صورت نہ ہو، تو قصب معاش کے لیے گھر سے نکلنا جائز ہے، پیسہ کمانے کے لیے گھر سے نکلنا جائز ہے۔ پھر میں یہاں ڈسکلیمر کے طور پر ایک بات بتا دوں، یہاں ہم مثالیں دیکھ رہے ہیں، آسان اصول فقہی مثالوں کو لے کر
किसी के शौहर का इंतकाल हो जाए और आप माशाल्लाह आलिमा बन रही हैं बोलकर आपका सवाल आ जाए कि हमारे पास तो खाने का कुछ भी इंतजाम नहीं है, ठीक है, तो क्या जा सकते बाहर? आप बोल दिए फौरी तौर पर हाँ, आसान उसूल फिक्र में मैं पढ़ी थी, चले जाएं। ऐसा ना करें। आप उनकी सूरत हाल को पूरी मालूम करें। मालूम कर कर किसी बड़े मुफ्ती साहब से आप खुद मालूम कर कर बता दें, या उनको राब्ता करने के लिए कह दें, ठीक है ना। बास चीजों में लचक होती है, यहाँ समझने के लिए एक मसला तो जिक्र कर दिए, लेकिन बास जगह पर सवाल मुफ्ती जो होते हैं वो प्रॉपर क्वेश्चनर तैयार करते हैं, ठीक है ना, प्रॉपर सवाल करते हैं। उन सवालों की बुनियाद पर इजाजत, शख्सियत से शख्सियत तक इजाजत बदल जाती है ना। किसी को इजाजत होगी, किसी को नहीं होगी। तो वो हम एहतियात का दामन ना छोड़ें, आसान उसूल फिक्र के मिसालों की बुनियाद पर हम फतवे देना शुरू ना कर दें, ठीक है ना। और ना ये मसले को कोई सुनकर जो है, कोई भी आ गया फोन आया, जो है किसी ने यूट्यूब पर सुन रहे थे, अच्छा हाँ हाँ नहीं नहीं आप जा सकते हैं, मैं पढ़ा था आसान उसूल फिक्र में, नहीं, ऐसा नहीं होगा। हर फन के माहिर होते हैं, लिकुल्ली फनिन रिजाल। इसी तरह जो है तीसरा मसला जो है कि भाई सतर का छुपाना फर्ज है। अब सतर को छुपाना फर्ज है, लेकिन कहीं पर यह नौबत आ जाए इंसान के लिए कि दवा दारू के लिए, इलाज मुआलजे के लिए एक्सीडेंट हो गया, जो है कूल्हे की हड्डी इस बंदे की सरक गई, भगा रहे थे गाड़ी, अब कूल्हे की हड्डी बिठाना है तो वहां सतर खुलेगा ही खुलेगा। तो क्या ऐसी सूरतों में, या जैसे ऑपरेशन वगैरह होते हैं बाज बड़े, उसमें जो है क्या इंसान अपने सतर को दिखा सकता है? तो वहां पर भी तफसीलात है कि पहले जो है खैर सतर तो खुलना ही पड़ेगा, उसके बाद जो है प्रायोरिटीज वगैरह वहां पर होती हैं क्या करने की हैं। तो यहाँ पर मुसन्निफ वही बता रहे हैं कि यह हिस्से सतर को छुपाना वाजिब है, लेकिन इलाज के लिए जरूरत के बकदर सतर को खोलने की इजाजत दी गई है। तो ये तमाम काम किससे हुए? इस्तिहसान से हुए। और कौन सा इस्तिहसान है? तो इस्तिहसान बिल जरूरा है। बात समझ में आ गई आप लोगों को? तो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद जो है इस्तिहसान बिल मसलिहा, ठीक है। मसलिहत की वजह से जो है कोई काम आपने कियास को छोड़ दिया और इस्तिहसान पर अमल किया। फिर डिस्क्लेमर यही है कि मसलिहत मेरी आपकी नहीं, ठीक है ना, वो मसलिहत शरीयत के दायरे में होनी चाहिए, जो माहिर होंगे वो उसको तय करेंगे। तो इस्तिहसान बिल मसलिहत ये है कि किसी मसलिहत की बिना पर कियास को तर्क कर दिया जाए। जैसे कियास का तकाजा है कि कारीगर से चीज जाया हो जाए तो वो उसका जामिन ना हो। देखिए सुनिए, मसले को समझिए, मसला नहीं मतलब आसान उसूल फिक्र के मसले को समझिए, ठीक है ना, मिसाल को समझिए। हाँ, तो कारीगर होते हैं, ठीक है ना, आप क्या करें, आपका ड्रेस जो है सिलवाने के लिए आपने कारीगर को दिया, कारीगर ने जो है इधर उधर काट दिया कर दिया, या कारीगर के पास गुम गया, ठीक है। अब अकल ये कहती है कि भाई कारीगर जो है ना ये एक अमीन है, अमानतदार होता है, ठीक है ना, अमीन होता है। क्या होता है? अमीन होता है, ठीक है। अगर गलती से, आमदन नहीं, गलती से अगर अमानतदार अमीन के पास से चीज जाया हो जाए तो उसका जामिन, उसका जिम्मेदार वो नहीं होगा। तो क्योंकि कारीगर भी अमीन के तौर पर होता है कि हम हमारे जो भी एड्रेस हो या जो भी बहुत सी चीजें, जूते हैं वो हैं, बहुत सी चीजें निकलती हैं जो हम कारीगरों को देते हैं, उसके पास अगर जाया हो जाए तो कियास ये कहता है कि भाई उस अगर उसने गलती से वो चीज जाया हो गई तो वो उसका जामिन नहीं होगा। लेकिन आज के चोर चपाटे लोगों के सामने ये मसला आप रख दोगे तो कारीगर तो गबन कर लेगा। नहीं, ड्रेस सिलाने देते हैं तो ज्यादा कपड़ा मंगाते हैं, बाज लोग कुर्ता पजामा सिलाने दीजिए, ज्यादा लेते हैं, थोड़ा थोड़ा जो है जमा कर लेते हैं। ये जो भी हो, यानी डुबाने को लोग बैठे हुए हैं। अगर ये इजाजत दे दी जाए, शरीयत का मसला ये बता दिया जाए कि भाई आपका अगर जो है हमने अल्टेशन के लिए बुरका दिया और बुरका आपका जाया हो गया, ठीक है, गलती से नहीं हुआ, ठीक है, चलिए मेरे को नया बुरका दे दीजिए, फिर मैं खरीद लूंगी, तो वो तो माशाल्लाह तबारकल्लाह पैसे बनाएगा, बाद में आपको ही वही बुरका चिपका देगा, है ना। तो इसमें क्या है कि लोग जो है गलत इसका फायदा उठा सकते हैं, क्योंकि अब तकवा उतना लोगों के अंदर बाकी नहीं रहा। इसलिए इस्तिहसानन ये किया गया कि कारीगर जो है अगर कोई चीज उसके पास जाया हो जाए वो उसका जिम्मेदार हो। और नॉर्मल आजकल मार्केट में यही चलता है। तो मुसन्निफ वही बता रहे हैं कि कियास का तकाजा यह है कि कारीगर से चीज जाया हो जाए तो वो उसका जामिन ना हो। क्यों? क्योंकि वो अमीन है, अमानतदार है, और अमीन से जो चीज जाया बिला तअद्दी, ठीक है ना, बिला तादी ये शर्त है, जाया हो जाए वो उसका जामिन नहीं होता। मगर अंदेशा यह है कि इस तरह की रियायत से फायदा उठाकर
फी जमाना, आज के जमाने में बददियानत लोग जरी हो जाएंगे। और ये टाइम पे मसला याद आता है लोगों को, देखना ये टाइम पे मसले बयान भी करते हैं, अरे आपको नहीं मालूम शरीयत का ये मसला है, अच्छा 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 अच्छा, ठीक है ना। और लोगों के हुकूक ज़ाया करते रहेंगे। इसलिए बतकाज़ाए मसलिहत ऐसे कारीगर को ज़ाया शुदा सामान का जामिन करार दिया गया। मौज ठीक है, यहां पर बात मिसाल खत्म हो गई। पहली मिसाल समझ में आ गई। दूसरी मिसाल देखिए कि शरीयत में ना ओहदे को तलब करना मुनासिब नहीं समझा गया। शरअन जो है ओहदा तलब करना, पोजीशन तलब करना कि मैं अमीर बनना चाहता हूं, मैं जो है वो बनना चाहता हूं, ये चीज पसंदीदा नहीं है। लेकिन आज के जमाने में अगर कोई मुसलमान वोटिंग के लिए क्या होना है, अपने नाम को पेश करना पड़ता है ना इलेक्शन में जाने के लिए। तो आज के जमाने में अगर मुसलमान अपना नाम वोटिंग में पेश नहीं करेगा, इलेक्शन में पेश नहीं करेगा, इलेक्शन नहीं लड़ेगा, मसलन हमारे एमपी एमएलए नहीं होंगे, तो मुसलमानों की रियायत जो है गवर्नमेंट में नहीं हो सकती। इसलिए इस्तिहसानन बिल मसलिहा इलेक्शन में खड़े होने, उम्मीदवार बनने की इजाजत दी गई है। वही बता रहे, मौजूदा दौर में इलेक्शन में उम्मीदवार बनने की इजाजत दी गई है। हालांकि कियास का तकाजा यह था कि ये जायज ना हो, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ओहदा तलब करने से मना फरमाया है, और ये भी ओहदा तलब करने की एक सूरत है। लेकिन अगर मौजूदा इंतखाबी निज़ाम में मुसलमान इलेक्शन में उम्मीदवार ना बने, तो कानून साज इदारों में मुसलमानों की नुमाइंदगी बाकी ना रहेगी, और इसकी वजह से सख्त दीनी और मिली नुकसान होगा। इस मसलिहत के पेश नज़र खिलाफ क़ियास इस्तिहसानन इसकी इजाज़त दी गई है। बात समझ में आई? मसलिहा भी आपको क्लियर होगा। अब उसके बाद है इस्तिहसान बिल क़ियासिल खफी। ठीक है, एक सेकेंड। हाँ, तो इस्तेहसान बिल क़ियासिल खफी ये है कि वाज़े क़ियास को निस्बतन कम वाज़े क़ियास, वाज़े बोलते क्लियर, ठीक है ना, वाज़े क़ियास को निस्बतन उसके मुकाबले में कम वाज़े क़ियास लेकिन कवी क़ियास की वजह से तर्क कर दिया जाए। यानी एक ऐसी चीज दिख रही है कि क़ियासन जो है ये चीज क्लियर कट है कि ये होना चाहिए, लेकिन उसके मुकाबले में कम वाज़े क़ियास, वाज़े यानी क्लैरिटी तो उसमें कम है, लेकिन पावर के हिसाब से वो कवी है, तो उसकी वजह से वाज़े क़ियास को तर्क कर देना, ये कहेंगे हम इस्तिहसान बिल क़ियास अल खफी। मिसाल यहां पर मुसन्निफ ने जो दी है, जैसे जो दरिंदे होते हैं, शेर है, ठीक है ना, भेड़िया है वगैरह, उनका झूठा जो है नापाक है। तो दरिंदे जो होते हैं जो शिकार करते हैं, तो उसी तरह अगर आप चरिंदों में देखोगे उसमें भी दरिंदे होते हैं, चील है, बाज वगैरह है, ये भी दरिंदे हैं। तो कियास क्या कह रहा है कि जैसा चीता शेर वगैरह का झूठा नापाक है, उसी तरह चील और जो है इसी तरह बाज वगैरह जो होते हैं, शाहीन वगैरह जो होते हैं, उनका भी झूठा नापाक होना चाहिए। क्यों? दोनों दरिंदे होने में कॉमन है। यह कियास कह रहा है। कियास में आप थोड़ा और डिग डीप करोगे, अंदर जाओगे, तो आपको मालूम होगा कि भाई ये जो जानवरों में जो दरिंदे हैं वो दांतों से शिकार करते हैं, ठीक है ना, पानी भी जो है जबान लगाकर पीते हैं। और अगर आप ये चरिंदों में जो दरिंदे हैं, चील बाज वगैरह है, उनकी देखोगे कि आप जो है चोंच होगी, वो चोंच के जरिए जो है पानी पीते हैं। तो क्योंकि चोंच होती है, चोंच हड्डी की होती है, वो नापाक नहीं होती। ये कवी कियास हो गया, इसकी बुनियाद पर उनके झूठे को पाक करार दिया गया। मिसाल देखिए यहां मुसन्निफ ने लिखी है, तो शेर, भेड़िए वगैरह दरिंदे चौपायों का झूठा नापाक है। बस बज़ाहिर क़ियास का तकाजा है कि चील, बाज वगैरह का झूठा भी नापाक हो, कि ये भी दरिंदा है। मगर क़ियास खफी, छुपा हुआ हल्का सा क़ियास ये है कि चूंकि ये चोंच से पानी पीते हैं और चोंच हड्डी की है, इन परिंदों का लुआब चौपायों की तरह पाक पानी तक नहीं पहुंचता। चौपाए यानी शेर वगैरह, चार पैरों वाले जो हैं, उन लोगों का लुआब थूक डायरेक्ट लग जाता है, लेकिन जब ये चोंच से पीते हैं और चोंच हड्डी की है, तो पानी तक जो है इनका लुआब थूक नहीं लगता, जो नापाक है, यानी थूक जो नापाक होता है। इसलिए उनका झूठा पाक होना चाहिए। चुनांचे इस क़ियास खफी को कबूल किया गया और उसको पाक रखा गया।
एक मिसाल ये है, उम्मीद है समझ में आ गई होगी। दूसरी चीज मुसन्निफ फरमा रहे हैं कि जैसे जमीन पर मसलन अगर कोई पेशाब कर दे और जमीन खुश्क हो जाए तो पाक हो जाती है। जाहिर क़ियास का तकाजा यह है कि सिर्फ जमीन के खुश्क होने से पाकी हासिल ना हो जब तक पानी से निजासत धुल ना दी जाए। लेकिन क़ियास खफी यह है कि अल्लाह ताला ने जमीन में आलूदगी को जज्ब करने की गैर मामूली सलाहियत रखी है, इसलिए ये नजासत को तहलील कर देती है, यानी उसको खत्म कर देती है, तहलील कर देती है। लिहाजा जमीन के खुश्क होने पर पाक होने के लिए काफी समझा गया है। बात समझ में आई कि जमीन पर जो है, अब आपको नहीं मालूम ना, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस है कि सारी जमीन को हमारे लिए नमाज सजदा गाह बनाया गया है, नमाज पढ़ने के लिए हमको इजाजत दी गई है, इल्ला के कब्रिस्तान और हम्माम है। तो अब यहाँ पर जमीन पर जो है आप कहीं पर बाग में चले जाओ, नहीं मालूम आपको जो है, आप पार्क वगैरह में चले जाओ, बिल्कुल साफ सुथरा रहता है, लेकिन नहीं मालूम कहाँ पर जो है किस दरिंदे ने, किस परिंदे ने, किस छोटे बच्चे ने जो है वहां पर गलाजत की हो, फिर पानी से धोया भी नहीं गया है। अब जमीन खुश्क है तो हमारे लिए पाक है, हम नमाज पढ़ लेंगे, इल्ला ये कि आपको कुछ निशान, कुछ असरात दिखे। तो यहाँ पर भी जो है क़ियास क्या कह रहा है कि जब तक पानी से उसको धोया ना दिया जाए जब तक वो पाक नहीं होगी। लेकिन गौर किया गया तो ये मालूम हुआ कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जमीन में है, साथ में धूप की तपिश भी होती है, अगर कहीं धूप भी ना हो तो जमीन में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये कशिश रखी है कि ये चीजों को तहलील कर देती है, खत्म कर देती है नजासत को, इसलिए उसको पाक करार दिया जाएगा इंदल अहनाफ। ठीक है, बात समझ में आई मसाइल। तो यहाँ पर हमारे इस्तिस्तान की तमाम सूरतें मुकम्मल होती है इंशाअल्लाह। आगे के असबाक में आगे के मौज़ूआत मुख्तलिफ़ अदिल्ला के हम देखेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि।